لنبوئنهم حسنا لو كانوا يعلمون. تیرا نام لکھا اور میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد کو لکھا اور چوما. نعت کے لیے بھی میں مقاصد قریشی سے درخواست کروں. ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور کچھ دیر تو رکا ہوتا تیرے حجرے کے ایک منٹ خبر کر اس میں گلبانوں کی ترغیب کرنی ہے, رگے جاں کی رونمائی کرنی ہے. تو ہم بس طاہر بھائی کے حکم کو ٹال نہیں سکتے, تو یہاں آ گئے. طاہر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. آرٹس کونسل آپ تمام خواتین و حضرات کی بہت شکر گزار ہے, لیکن جتنی فرانس نے ترقی کی اتنی ہم کر نہیں سکے شاید, اس لیے ہو سکا. تو بہرحال اس میں ہمارا قصور ہے, زبان بیچاری کیا کرتی. اب تو یہ ویسے بھی جو بھی ہے سلسلہ. میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. بہت ساری ذمہ دار ہستیاں یہاں موجود ہیں, سب کے سب لوگ بہت ذمہ دار ہیں. جناب مرتضیٰ مجید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, بزم شور و سخن کے امجد محمود صاحب ہیں, کوثر سب بیٹھے ہوئے ہیں, خالد. اتنی دیر سے اصل میں نعت سن رہی تھی, اس میں کھوئی ہوئی ہوں کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے جس کے میں چلیں کوشش کرتے ہیں پلیز. سب سے پہلے تو میں تمام مہمان جناب محمود شام صاحب, جناب خیالہ ثانی صاحب, اقبال رحمان صاحب, ڈاکٹر فرد صاحبہ, سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. محترم احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل کے صدر, تعمیر آگائی صاحب اور تمام لوگ گورنر باڈی کے لوگ جو اس میں شامل ہوئے اور اس پروگرام کو بہت اچھے سے سجایا. اور مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے, مجھ سے خوشی ہو رہی ہے, کچھ بولا نہیں جا رہا. خیر میں اپنی سے کوشش کروں گی کہ میں کچھ کہہ سکوں. ہر عورت فیملی سے ہی نکل کر آتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ قلم پکڑ لے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیملی سے باہر ہو گئی. اچھا, آج جب اس روسٹر میں کھڑی ہوں تو دل اللہ کے تشکر سے لبریز ہے کہ جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرتی ہوں, اور اس کے بعد پھر نانی جان کر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً میری بات کو سن رہی تھی. انہوں نے میرا بچپن سنبھالا, بلکہ ان کے کہے الفاظ آج بھی میری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. ان کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے باپ جیسے بھائی کا, جنہوں نے اپنے کندھے پر سوار کر کے مجھے باب علم تک لے جاتے رہے, مجھے تعلیم کے لیے آمادہ کر کے ہر مرحلے پر میری رہنمائی کرتے رہے. اردو پڑھنے کی جانب غیر محسوس طریقے سے مائل کیا, کیونکہ وہ خود بھی کتابوں سے رغبت رکھتے ہیں, تو گھر میں کتابوں کا مدخل شروع سے تھا.
एक वक्त ऐसा भी था जब भाई चुपके चुपके कुछ लिखा करते थे, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो उसे आगे बढ़ा न सके। लेकिन मेरी हमेशा हौसला अफजाई करते थे, बल्कि करते रहते हैं अब भी। जो कुछ मैं लिखती हूँ मैं उनको ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि उनके बाद मुझे लगता है कि मैं शायद मुकम्मल नहीं लिखती। उसके बाद मैं अपने उस्ताद मोहतरम याकूब आसी साहब जो आज हमें मौजूद नहीं है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मेरी छोटी छोटी तहरीरों को की हौसला अफजाई की, उसमें उन्होंने अपने रिसालों में शायर किया और मुझे इतना हौसला दिया कि आप ज़रूर कुछ लिख सकती हैं। उन्होंने छोटी छोटी सी मेरे तहरीरों को बहुत पसंद आई, इतनी शाबाश दी कि मुझ में इतना वाकई हौसला पैदा हुआ कि मैं कुछ लिख सकूँ। उसके बाद मैंने वो लिखना शुरू किया, जैसे शुरुआत की सूरत में मैंने शायर भी किया, अखबार में भेजा, मतलब शायर हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है अगर उनकी हौसला अफजाई ना होती तो शायद मैं इस अदबी दयार में अपनी जगह न बना पाती। कभी कभी किसी की तकदीर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, अल्लाह उनको अपने जवाब में अपने जगह देता है। उनके बाद मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनाब इकबाल रहमान साहब का, जिन्होंने किताबी सूरत में लाने के बहुत मेरी मदद की सिलसिले में, कुछ अखलाक की निशानदेही फरमाई, बल्कि सारे काम अपने ज़िम्मे लेकर हमें जो है हर मकसद कर दिया। किताब के साथ चक्कर में सब पहुँच गई, मुझे घर बैठे तो उसका पता भी नहीं चला। इसलिए मैं इनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ और जनाब मोहतरम ताबिर आगाई साहब उनकी बेहतर शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस तकरीब को मेरे लिए इतने एहतमाम से सजाया। जनाब नईम बेग साहब, मुनीर अनवर साहब, सलमान सिद्दीकी साहब, इन्होंने अपने शानदार तबसरों से मेरी किताब को सजाया और अपने ख्याल का इतना उम्दा तरीके से इजहार किया कि कहीं कहीं तो मुझे लगा कि मालूम नहीं मेरी तहरीर या मेरी किताब इस काबिल है भी कि नहीं। बहुत खूबसूरती से सजाया, बहुत अच्छे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इसको सजा दिया। जनाब मुर्तज़ा मजीद साहब का भी बेहद शुक्रिया और सबसे आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया। तमाम जो इनके मेम्बरान हैं, बॉडी गवर्नर बॉडी के जो जितने भी मेम्बरान हैं, सबको मैं नहीं भी जानती, लेकिन सबका मेरा बेहद शुक्रिया। अब आते हैं इस तरफ की लगे जहाँ जो मैंने किताब लिखी, यूँ तो देखिए दुनिया भर में हिजरत की कहानियाँ जा बजा बिखरी पड़ी हैं। बड़े सग़ीर की तक़सीम और उसके नतीजे में होने वाली हिजरत शायद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत कहलाती हो। हिजरत के नतीजे में बेशुमार कहानियाँ वजूद में आई, बहुत से लोगों ने लिखी है, अपने तौर पर लिखी। कुछ हुर्मा नसीब अपनी कहानियों को अपने साथ ले गए, तो कुछ अब तक अपने बच्चों और उनके बच्चों को उन दिलसोज वाक़यात और हालात की कहानियाँ सुनाते हैं। इस वक्त उनको मोहब्बत से समेटने का दर्स देते हैं। अपने किरदारों में से एक किरदार इस मामले का हीरो भी है। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए। कुछ लोग कीमती मोती जैसे होते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी रोशनी से अपने आस पास मुनव्वर रखते हैं, गैर महसूस तरीके से अपना फैज़ बांटते रहते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोगों को मालूम होता है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। इंसान अपनी जिम्मेदारियों के बल पर कीमती होता है, कितने ही लोगों की उम्मीदों का मरकज़, कितने मसाइल का हल उसकी एक मुट्ठी में होता है। इस तरह के कीमती लोगों के जाने से जो खला पैदा होता है वो कभी पुर नहीं होता। कोई इंसान भी किसी दूसरे का नेमी बदल हो नहीं सकता। अलबत्ता के साथ साथ तरजीहात बदल जाती है तो वक्त बदल लग जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही किरदार के गिर्द बुनी गई है जो इस ज़मीन पर उतरा और अपनी रोशनी फैला गया। ऐसा चीता जाता किरदार था जब भी तमाम तर सच्चाइयों की दास्तान सुना गया। वो मेरा कुछ ना होते हुए बहुत खुश था। ये किरदार मेरी रूह में उतर गया। इसको लिखने की वजह ये भी है, ये एक आबिदी ही नहीं है, ये जगबीती भी है जो करोड़ पाकदेवी से शुरू होकर पाकिस्तान पहुंची, यहाँ करवट ली और अमेरिका में इख्तिताम पजीर हो गई। जब कोई कश्ती पहली बार समुद्र में उतारी जाती है तो बेपनाह खुशी के साथ एक मौन सा अंदेशा रहता है। ये अंदेशा मुझे भी लाभ है कि मैं दुरुस्त अंदाज में इस कहानी को आप तक पहुंचाने में कामयाब हुई हूँ या नहीं। भाई
शकील भाई और फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी जब कहा तो मेमन लोग शीशी को सीसी कहते हैं। और बात ये भी थी कि फ्रांसीसी आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो मेमन बरादरी के ज़ेर तमाम जितने हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ किसी से पूछें कि ऑपरेशन लेट क्यों हुआ, तो कहते थे सीसी सुंघाने वाला देर से आया। तो फ्रांसीसियों ने हमें सीसी सुंघा दी है, तो हम सोए हुए हैं, वो आगे निकल गए। भाई तो उस पर लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन जो माने हुए लोग थे, जो अदीब थे, उन्होंने उसको पसंद तो किया, लेकिन साथ में एक छोटा सा जुमला लिखा कि इकबाल साहब बाकायदा अदीब नहीं है। इसका मतलब है कि किताब जो है वो 2 और 2 4 के म्याद को पूरी नहीं उतर रही। यहाँ जो बैठे हैं लोग ये 2 और 2 4 करने वाले हैं। मुझे एक इंडिया की फिल्म का डायलॉग याद आता है कि उसने कहा कि जब तुम मुंबई में आए तो शुरू में कामयाब क्यों नहीं हुए, तो उसने कहा मैं माँ जी के उसूलों पे चलता था, 2 और 2 4। फिर मुझे यहाँ एक साहब मिल गए, वो मेरे मामू बन गए, मैं मामा जी के उसूल पे चलने लगा तो 2 और 2 22 करने लगा। लेकिन हम मेमन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। एक और साथ में लतीफ़ा अर्ज़ कर दूं कि आदमी ये भी इंडिया से रह के कहीं से गुजर रहा था, तो उसको 2 लड़कों ने उसका आवाज़ कसी, उनको वो जानता था। एक लड़के की माँ नहीं, तो उसने कहा ये अच्छा मौका, उसने कहा जिसने अपनी माँ का सब्र किया है वो आ जाए लड़ ले, लेकिन उसको दोनों ने मारना शुरू कर दिया। जब पिट के फारिग हुआ तो भाई उसकी तो माँ है, चलो उसने मुझे मारा, तुमने मुझे किस खाते में मारा? बोला मैंने अपनी माँ का दूध देखा, बाप की दारू पी है। तो हम मेमन लोग जो हैं वो अब्बा जो पिलाते हैं वो पीते हैं। तो हमारी हम जब 5वीं 6वीं क्लास में होते हैं, दुकान पे हमारी तरबियत शुरू हो जाती है और अब्बा पूछते हैं 2 और 2, तो कहते हैं 4, तो कहते हैं तो बहुत सीधा आदमी है। हम पूछते हैं 2 और 2, तो हम कहते हैं 22, तो कहते नहीं ये तो गलत काम है, 2 नंबर काम है। 2 और 2 हमें बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 2 और 2 4 भी बन सकते हैं, 2 और 2 6 भी बन सकते हैं, और 2 और 2 3 बाजू का बनाने पड़ते हैं, कारोबार उसका नाम है। तो ये गुलबानो की जब किताब आई, गुलबानो ने मुझे इब्तदाई 8 अबवाब भेजे पढ़ने के लिए। तो इतनी खूबसूरत रवानी थी उसके अंदर कि मैंने कहा इसमें मैं क्या राय दूंगा, आप तो बहुत अच्छा लिख रही हैं। लेकिन ये मुतमईन नहीं हुई, इन्होंने कहा कि इसमें आप बिल्कुल टू द पॉइंट उसको बताएं। तो इत्तफाक से सबक उसमें एक इक़्तिबास ऐसा आ गया, हिजरत करके जब शिप कराची पहुंचा तो उसका इन्होंने इतना खूबसूरत तस्करा किया था कि मैंने इनकी इजाज़त से वो इक़्तिबास अपनी किताब में ले लिया। तो इनको एतमाद हो गया कि भाई मैं अच्छा लिख रही हूँ। हमने इनकी किताब में जो नोट फलक दुरुस्त की वो सिर्फ इतनी की है कि जहाँ जहाँ हम हमारे यहाँ रिवाज सा बन गया कि अंग्रेज़ी के साथ ही बड़ी इस्तेमाल होती है, जहाँ एक्टिविटी है तो हमने उसको सरगर्मी करा दिया। इस तरह के जो अल्फाज थे वो सारे हमने उर्दू में बदले। और दूसरा जो था, जैसे हम आज किसी से कहेंगे कि बहुत अमीर आदमी है तो उसे कहते हैं अरबपति है, लेकिन 47 में अरबपति नहीं होते थे, लखपति होते थे। तो उस जमाने की जो इस्तिलाहात थी वो हमने इसमें दुरुस्त की। मेरा काम सिर्फ इतना है। इसके अलावा इनका जो नावल है वो बड़ी रवानी से लिखा गया है। तो इस नावल में अगर माहिरीन ये राय देंगे कि 2 और 2 4 है, तो इसका मतलब है कि गुलबानो ही का है। वो जहाँ इसमें 2 और 2 4 से आउट होगा उसमें इकबाल रहमान का कसूर है। तो मैं गुलबानो साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम ये हमारे साथी बैठे हैं, इनकी सोबत से आज फैज़ उठाएंगे, इनको सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शकील साहब नामवर नाज़िम तकरीब सिक्का जमाया हुआ है उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में अपने कलाम का और अपनी नियाबत का और निज़ामत का। इकबाल रहमान मांडविया, फरहत अज़ीम साहिबा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर नामवर अजीम हज़रात, एक इतराफ़ तो इकबाल मांडविया कर गए। इकबाल रहमान मांडविया इनका पूरा नाम है और कि उनका हाथ इस नावल पर लगा है। और इसका अंदाज़ा आपको इस नावल के मतन से हो जाएगा। अगर किसी साहब ने इनकी किताब इस दश्त में एक शहर था कराची के हवाले से 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब पढ़ी है और उसके जुमलों से महसूस हुए हैं, उसकी लताफ़त से महसूस हुए हैं, वो जान लेंगे कि इस नावल पर इकबाल रहमान मांडविया का हाथ लगा है। बहुत
دوسری اہم بات یہ کہ آج کی اس تقریب میں 2 تقاریب پذیرائی ہیں، ایک تو ناول کی رگے جاں کی اور ایک گل بانو کی۔ گل بانو کو ہم سب نہیں جانتے تھے، آج ہم اس ناول کے حوالے سے ان کو پہلی مرتبہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم نے انہیں سنا بھی ہے یہاں۔ اور آج اس تقریب کی بہت اہم خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت تازہ ترین تحریر سننے کو ملے گی جو محمود شام کی ہوگی۔ محمود شام کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ تقریب میں پہنچ کر تحریر کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں کہنا ہوتا ہے، اور وہ تحریر اتنی تازہ ہوتی ہے کہ شاید کسی کا شعر بھی اتنا تازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ جو تحریر آپ کو سننے کو ملے گی اور آپ محسوس ہوں گے اس بات سے۔ میں نے یہ ناول پڑھا، اس ناول کے بارے میں نے کچھ تحریر لکھی، اگر میں اسے پورا پڑھ دوں گا تو بھی اس لیے مناسب رہے گا کہ آپ جان پائیں گے کہ اس ناول میں کیا ہے، یہ ناول کیوں لکھا گیا۔ بتایا گیا، شکیل نے ذکر کیا کہ یہ ناول تقسیم ہند کے حوالے سے ہے اور وہ واضح ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ناول تقسیم ہند کے تناظر میں تو ہے، لیکن تقسیم کے اسباب کی علت پر نہیں ہے۔ کیوں تقسیم ہوئی، کیوں پاکستان بنا، کیوں ہندوستان بنا۔ یہ ناول ایک ایسے کردار کے حوالے سے ہے جس نے قبل تقسیم کا ماحول ہندوستان میں دیکھا برتا، اس کے بعد وہ تقسیم کے ان حالات سے گزرا، اس نے ہجرت کی، ہجرت کے سارے معاملات اس میں تذکرہ کیے گئے ہیں، وہ پاکستان آ گیا، پاکستان میں کس طرح اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے کاوشیں کی، کوششیں کی اور کن کن مسائل سے گزرا۔ صرف 2 صفحات کی تحریر ہے، مجھے پڑھنی اس لیے چاہیے کہ میرے بعد ڈاکٹر شاداب احسانی اور اس کے بعد سمجھ نحوی خطاب کریں گے، کوئی لمبی تقریریں یہاں نہیں ہیں اس حوالے سے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تک وہ متن پہنچ جائے جس حوالے سے آج ہم یہاں اس تقریب میں گل بانو کا ناول رگے جائیں آسو۔ ناول نگاری وضاحت کا فن ہے، اس میں وہ سب کچھ شامل کیا جا سکتا ہے جو بامحل اور متحرک ہو۔ ناول زندگی کا جز نہیں، کل ہے، یہ ایک اور ایک سے زیادہ زبانوں کو بھی پیش کر سکتا ہے۔ ناول لوگوں کو حقیقت کا اصل روپ بشکل قصہ دکھاتا ہے۔ ناول سادہ لفظوں میں کہانی پھیلانے اور سمیٹنے کا فن ہے، اور قلمکار کی ساری فنکاری اسی بکھراؤ اور چمٹاؤ میں پوشیدہ ہے۔ مجدہ بالا تعریف کے پیرائے اور کہانی کے بکھراؤ اور چمٹاؤ کے تناظر میں گل بانو کے ناول رگے جاں کا تجزیہ کیا جائے تو یہ ناول اس تعریف پر کم و بیش پورا اترتا ہے۔ اس میں ایک کہانی ہے جو کئی زبانوں پر محیط ہے اور کردار متحرک ہیں۔ میں کچھ جملے چھوڑتا جاؤں گا تاکہ جلدی آپ پہنچ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس ناول کے قلمکار گل بانو نے مہارت اور اثرپذیری کے ساتھ ناول کے مرکزی کردار ممتاز دیکھی ہے، جسے انہوں نے ممتے لکھا ہے۔ یہ پیار کا نام ہو سکتا ہے کردار کا۔ اس کے حالات اور واقعات کو صنفی صحت کے ساتھ پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ متن میں سمو دیا ہے۔ جب یہ گہرائی گہرائی اس لیے میں اہم کہہ رہا ہوں کہ کسی عام لکھنے والے مرد کے لیے بھی ان معاملات کا تحریر کرنا مشکل ہے جو معاملات ایک خاتون کے قلم سے، ایک مرد کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے۔ اگر آپ ابھی یہ ناول حاصل کریں گے اور حاصل یقیناً کیجیے گا، پیچھے اسٹال لگا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کی قیمت کچھ نہ کچھ رعایتی ہوگی آج کی تقریب کے حوالے سے۔ اقبال صاحب اس تقریب کے منتظم ہیں، اس لیے میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس معاملے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائیں کہ یار تم نے نقصان کروا دیا میرا۔ حاضرین محفل، یہ ناول ہندوستان کے شہر دہلی کے قرول باغ کی گلی نمبر 19 جس کا ذکر شکیل صاحب نے کیا، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ گلی نمبر 19 وہ ہے جہاں مذہبی رواداری، سماجی آہنگی اور ایک افاق و تفہیم کا منظرنامہ موجود تھا۔ اور یہ کہانی کا تانا بانا ممتاز صدیقی اور دہلی میں ان کے پڑوس میں آباد سکھ خاندان کی لڑکی شنوں کی گرد بنا گیا ہے۔ ناول کی ابتدا میں شنوں کے علاوہ ساجدہ، موہن اور پرکاش، جولی اور مائیکل، رنجیت اور بلو کے کرداروں کے ذریعے مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی برادریوں کے درمیان قربتوں اور یکجہتی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ تقسیم سے قبل واقعی
जब ये हिंदू और मुस्लिम की तकसीम हुई, हिंदुस्तान में अफ़ाम तफ़हीम का एक बड़ा अच्छा माहौल कायम था। जिस कर्ब से वो खुद गुजरता है उसी से कारी को गुजारता है। और इस नावल में हकीकतन ऐसा हुआ है कि अगरचे के गुलबानों ने ये नावल सुने सुनाए मामलात पर तहरीर किया है, लेकिन इसमें इन्होंने अपने कलम की ताकत से ये कैफियत पैदा कर दी है कि यूँ मालूम होता है कि जैसे ये खुद उस कैफियत से गुजरी उन हालात। मोहतरम महमूद शाम साहब जो मेरी किताब के मोहरिक भी हैं और तख्लीक कार भी हैं, मोहतरम प्रोफेसर शादाब एहसानी साहब, मोहतरम इकबाल रहमान और मोहतरम सलमान सिद्दीकी साहब, और इस तकरीब रूनुमाई की दुल्हन गुलबानो साहिबा, शकील खान साहब, आप बहुत खूबसूरत कंपेयरिंग करते हैं और इतना ज़्यादा और अच्छा बोलते हैं कि ख़वातीन को आपने पीछे छोड़ दिया। आपके लिए हर तकरीब में एक प्रोफेसर शादाब एहसानी होना चाहिए। मैंने शकील खान साहब, मैंने इससे पहले ना आपको देखा था ना सुना था। बहुत खुशी हुई है कि मैंने आज आपको देखा भी सुना भी, लेकिन आपने एक बात कही है कि आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी। आप 2 किताबें पढ़ चुके हैं, अब आपको तीसरी किताब भी पढ़नी पड़ेगी। ये किताब मेरे हाथ में है, रगे जंग। इस किताब को देखकर न जाने क्यों मुझे ये शेर याद आ रहा है, रगे जाम और गुलबानो के आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करके, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर न मैसर हुआ तो खून हुआ, पैगाम गैर से क्या शर्त आरज़ू, ज़ुबान गैर से क्या शर्त आरज़ू। मैंने कहा था ना कि प्रोफेसर शादाब एहसानी को हर महफिल में होना चाहिए ज़ुबान गैर से। तो आज हम सब अपनी ज़बान से बराह रास्त आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर। बहुत खूब। तकरीब तो आपकी गुलबानो कामयाब हो गई है, इसलिए कि जब बोलने वाले मोहतरम महमूद शाम और प्रोफेसर शादाब एहसानी जैसे हों तो तकरीब की अहमियत जाहिर होती है। और आप जैसे बाज़ौक़ हुस्न ज़न रखने वाले और मज़ाह की हिस्स रखने वाले अगर सामईन हो तो किताब की मकबूलियत ज़ाहिर करती है। मैंने इस किताब को पढ़ा मेरी कमिल में कि मैं गुलबानो को भी नहीं जानती थी और किताब को भी मैंने नहीं पढ़ा था। इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया कि वो घर आकर मुझे ये किताब लेकर गए। मैंने इस किताब को पढ़ा। इस किताब ने मुझे तकसीम इनसे पहले के माहौल में पहुंचा दिया, 72 साल पहले के माहौल में पहुंचा दिया। हकीकत का रंग ऐसा था कि एक एक अक्स को और एक एक किरदार को देखते हुए मैं ये भूल गई कि ये नौकरी है। मेरे जहन में गुलबानो का जो एक तस्वुर आया वो उसी उम्र की एक औरत का आया। मैंने कहा बहरहाल इनसे, और जो किताब पे जो तस्वीर थी और अंदर जो इनकी तस्वीर थी, मैंने इनको फ़ोन किया और फिर 1 घंटे मेरी इनसे बातचीत होती रही। पता चला कि ये तो मेरे भी बाद वाली नस्ल की है। और इन्होंने ये बताया कि ये सारे वाक़यात इन्होंने सुने हैं, अपने बड़ों से सुने हैं, कहानियाँ अपने बड़ों से सुनी हैं तक़सीम हिंद की, और उन वाक़यात को, उस माहौल को, उस समय को, उस रहने सहने के और मिलने जुलने के आदाब को इन्होंने नावल के रूप में ढाला है, लेकिन इस हकीकत पसंदी से डाला है कि गुमान नहीं होता, ऐसा लगता है ये कोई आप बीती है, हकीकत निगारी से बहुत दूर है। तो सुनते तो सब हैं, ये कायनात अल्लाह ताला ने सबके लिए खोल दी है, इसके गुल रंगू सबके सामने हैं, वाक़यात जो होते हैं वो भी सबके लिए होते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन सब कलम बंद नहीं करते।
कलमबंद वही लोग करते हैं जिनमें जज्बात पाए जाते हैं, जिसमें वाक़यात और मुशाहिदात जज्ब हो जाते हैं। जो जितना महसूस करता है वो तहरीर में उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। और गुलबानो ने न सिर्फ सुना, महसूस किया और फिर उसको वो तहरीर में ले आई। हम सब गुलबानो को तहरीर में लाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आपसे इजाजत नहीं, असल में नहीं बैठे हो तो फिर तो बिल्कुल छोड़ने को दिल नहीं चाहता। मैं ये दबा के लिए बहुत अच्छा होगा। ये वाक़या है 75 से और 80 के दरमियान का, सुना होगा। मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं उनको किसी तरह खराज तहसील पे, मैं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की तरफ से टीम में शामिल थे। दोस्त मोहम्मद जो प्रोफेसर फायजा की बहन होती थी, उस वक्त एक बहुत मोहतरम हस्ती सदारत फरमाई गई थी मुबाहिसे की। हुआ ये कि कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से वो शख्सियत तशरीफ न ला सकी जो सदारत फरमा रही थी, और मेहमान खुसूसी की कुर्सी पर थे वो। तो मुंसजमीन ने फैजी भाई से कहा कि जब तक वो नहीं आते आप सदारत फरमाइए या मेहमान खुसूसी की चेयर पर आइए। फैजी भाई कहने लगे कि मना किया उन्होंने, हम सब देख रहे थे, लेकिन वो जब लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर हूँ। मैंने ये किताब अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मैंने इसके मुताल्लिक़ अभी सुना, तो इसका जो सब्जेक्ट है हिंदुस्तान की तक़सीम और उससे कुछ पहले के वाक़यात और फिर उसके बाद नया मुल्क और वहाँ के जो हालात और वाक़यात, तो हम जैसे लोग के जिनका ताल्लुक़ उन ख़ानदानों से है जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने वो तमाम वाक़यात देखे, और हमने बचपन से लेकर आज तक वो कहानियाँ सुनी, वो हालात सुने जिनका हमें लगता है कि वो कहानियाँ हैं, लेकिन वो बहरहाल वो सच्चे वाक़यात हैं। तो मुझे यकीन है कि जब मैं ये किताब पढ़ूँगा तो उसमें बहुत सारे वाक़यात, हालात और रवैये ऐसे होंगे कि जिनसे मैं ज़रूर रिलेट कर सकूँगा उन तमाम कहानियों से जो मैंने बचपन से आज तक सुनी हैं। और पार्टीशन हिंदुस्तान की और उसके बाद जो नया मुल्क जब बना, तो ये बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विच इज़ क्लोज टू आवर हार्ट्स ऑल्सो, बिकॉज हमने ये कहानियाँ हमेशा अपने बड़ों से, वालिदैन से और अपने बुज़ुर्गों से सुनी हैं। सो मैं तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि किताब की रुनुमाई की इस तकरीर में हॉल भरा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं। खुदा करे कि पढ़ने का और लिखने का ये शौक़ हमारे मुल्क में इसी तरह रहे और बढ़े मज़ीद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लिखा था कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ था, मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ है। तेरा नाम लिखना किताब में, तेरा नाम पढ़ना किताब में। तो इकबाल रहमान साहब ने और गुलबानो ने हुक्म दिया था कि कुछ लोगों को फूल पेश करना है। तो ये बड़ी अच्छी रिवायत है कि फूल पेश किए जाएं। और जो गुलबानो का नावल है ये खासी हैरानी लिए हुए है, और अभी उस पर मैं बात कर लूँगा। पस मंज़र में जो है खदीजा मस्तूर का आंकन, अगर कि हम उस लिहाज से देखते जाएं नावल के हवाले से, तो हम देखते हैं कि फिसादात के पस मंज़र में बहुत अफसाने लिखे गए, लेकिन ना तो मुझे एक भी नावल ऐसा मिला अभी तक कि जो हक़ाइक़ लिए हुए हो और पता चला कि कहानी सुन के लिख दे कोई। असल में ये मेरे लिए वजह उसकी ये है कि मैंने गौर किया असलूब पर, तो मौसूफ़ा जो हैं ये राजस्थान की हैं, पड़ी बोली का इलाका है राजस्थान, और वहाँ कहीं पर भी ये लज्जा खाती हुई नज़र नहीं आई दिल्ली की ज़बान में और मुहावरे में। तो ये मज़ीद मैं हैरान हुआ इस पर कि ये एक नामुमकिन अमल कैसे मुमकिन हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो करोल बाग का मामला है, ये दरअसल समझ लें कि मेरी ये ननिहाल का मामला है, और ये ननिहाल का मामला भी इस तरह का है
कि मेरे नाना जो हैं वहाँ पर बाकायदा शहीद हुए या मार दिए गए। उसकी वजह यह है कि ये जो 19 नंबर और गली कासिम जान और आपका मेरी जो नानी थी वो मीर आशिर के कूचे की थी। अच्छा, ये सारे मेरे दादा सब दिल्ली के। तो मैंने इब्तदाई तौर पर जो ज़बान सुनी, मेरी नानी को आखिर तक ये यकीन नहीं था कि उनके शौहर मर गए हैं। हम उनसे कहते थे कि अम्मा नाना आ रहे हैं, तो घूंघट काट देती थी। तो यानी वो मसाइल हमने देखे, और ये जब हम बात करते हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। ये जो गली 19 है, यहाँ पर 4 स्कूल हैं, वंदे मातरम भी है पूरा है वहाँ पर चर्च भी है, यानी है क्रिश्चियंस का स्कूल भी है, मुसलमानों का जाम मिलिया भी है, और आपका इनके गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ स्कूल भी है। और फिर यानी हैरान की बात जो इसके अंदर और भी है वो ये है कि मरई को गैर मरई बना देना और गैर मरई को मरई बना देना, ये इनविजिबल को विजिबल कर देना और विजिबल को इनविजिबल कर देना, ये तो भाई कोई हर एक के बस का काम ही नहीं है। ये अगर मुझे ऐसा लगा कि ये जो है मुमताज़ सिद्दीकी जो हैं, ये कोई मसवदा किसी को दे दिया होगा और वो मसवदा जो है वो रीराइट हुआ। अच्छा, फिर ये जो मांडविया साहब है, ये मांडविया साहब का इलाका जो है वहाँ पर भी खड़ी बोली का इलाका नहीं है। तो मांडविया साहब कैसे इस्लाह फरमा दिए उन्होंने, ये भी मेरे लिए हैरानी की बात है, समझ गया। और ये सारे, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अच्छा दरमियान में अगर अल-बहजाद आ गया बीच में, तो अल-बहजाद मेरे बचपन का दोस्त है और जाहिर है कि उसके जो मसाइल थे, मेरे वालिद जो दिल्ली के थे तो वो खुशनवीस भी थे, और ये बैठी हुई नाजिश हैदरी मेरे वालिद के पास आते थे खासे, जब भी वहाँ गए तो नाजिश साहब जरूर आते थे और दिल्ली की गुफ्तगू होती थी। तो मेरा ये जो था अल-बहजाद, मेरे वालिद से इसने कैलीग्राफी सीखी थी, वहाँ बैठा था और ये लिखता रहता था। वालिद कहते थे भाई ये दायरे इस तरह नहीं, इस तरह बनेंगे, समझ गए। तो ये वाला जो मसला, मेरे वालिद का दवाखाना था, तबीब थे मेरे वालिद, हकीम थे। तो अब ये जो था इनकलाब में मुलाजिम हुआ था, फिर इनकलाब से भी जान छूट गई थी इसकी, तो ये आपको तो पता है ना शाम साहब। तो फिर ये वहाँ बैठने लगा, तो वहाँ पर ये फिर इनके हाथ चढ़ गया मुमताज़। अच्छा, ये कोई फेक नहीं है, ये जो किरदार मुमताज़ का है, ये अगर कोई ये कहे कि ये कोई ऐसा जाली किरदार है तो ये मैं नहीं मानता। अगर ये जाली किरदार होता तो इतनी तासीर और इतनी कुव्वत नहीं हो सकती इसके अंदर। ये जाली किरदार मुझे नहीं लगता है। और फिर आपने देखा कि आर्किटेक्चर की जो तालीम उसने ली लाहौर से, शाकिर अली जो उसके उस्ताद थे, और शाकिर अली सुभान अल्लाह आज भी जय्यद आदमी, और सारे सियाको सबाह के जो हवाले हैं वो सब 100% करेक्ट हैं। लॉर्ड क्रिप्स की जो बेटी है जो मुसलमान हो रही है, मार्गरेट जो है बेटा जो भी है, और उसके बाद वो जो देवबंद का एक हवाला आता है और वो मुसलमान होने की जो बात है वो भी सदाकत पर मबनी है। कोई ऐसा हवाला उसके अंदर मेरी समझ से नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है और हो क्या रहा है। और मैं जो हूँ अपनी नानी दादी और ये सारे लोगों को मैं महसूस कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें, और ये जो आपने जहाँ जहाँ शन्नों का जिक्र किया और आपका शकुंतला कौर जो है उसका मुसलमान होना, फिर सरदारों का जो एक तर्ज माशरत है सरदारों का, वो पूरे का पूरा आपने दिखा दिया वहाँ पर। जो बच्ची जो है उसकी जो यानी साली की जो बेटी है शकुंतला, वो अपने ताया से बच रही है क्योंकि वहाँ पर जो है उस तरह का माशरा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में सारी तो चीज़ें आपने दिखा दी, बिहेवियर दिखाया, वो भी पक्का है, समझ गए। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके काबू में कोई जिन है
कौन है ये मेरी समझ में नहीं आया अभी तक, कि या कोई ऐसा मुवक्किल है जो आपको लिखवाता रहा हो और आप लिखती चली गई। तो बिलाशुबा ये जो 219 सफ़े का ये है, हम इस पर नावल पर सवाल उठा सकते हैं इसकी फॉर्मेशन पर, लेकिन ये सवाल से ज़्यादा जो असलूब के लिहाज से जो इसमें तासीर पाई जाती है वो कमाल है इसमें। और उस कमाल के हवाले से मेरे लिए ताहाज नाकाबिल यकीन है, लेकिन क्या किया जाए कि यकीन ये ही बनती है कि जब जिसका नाम है उसी की बात होगी, लेकिन अगर ये बात इनकी है तो ये कभी ना कभी इस रात से भी पर्दा उठेगा और उठ ही जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हुसैन तारड़ राग, मोहम्मद हमीद शाहिद मल्टी यादव अब्दुल्ला हुसैन नादार लोग, कर्नल सिद्दीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा, एक सरवर गजाली जर्मनी में है, उनका नावल शब हिजरा, और भी बहुत से जो मुझे याद नहीं आ रहे। अभी इसी हफ्ते शहनाज परवीन का कितनी बरसातों के बाद भी मैसर आया है, और बहुत सी आप बीतियाँ हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू में, जनरलों की, ब्रिगेडियरों की, कर्नलों की और कुछ सेक्रेटरियों की। हमारे मुश्ताक सिद्दीकी रेडियो पाकिस्तान खुलना से वाबस्ता रहे, वो हमारे मानामा अतराफ़ में अपनी याददाश्तें कलमबंद कर रहे हैं। हमने मानामा अतराफ़ में पाकिस्तान की डायमंड जुबली साल में हिजरतों की दास्तानें मुस्तकिल सच शाये करना शुरू की है। नावल लिखना मुश्किल काम है। हाफिज शिराजी याद आते हैं, इश्क आसान नमूद अव्वल वले उस्ताद मुश्किल था। नावल की रुनुमाई की सदारत करना उससे भी मुश्किल। मुल्क में नक़ादों का कहत है, किताबों की रुनुमाइयाँ या अखबारात के अदबी सफ़ात, ये सब अंजुमन हाय तहसीन बाहमी बन चुके हैं। पहले जब अहमद नदीम कासमी, फरमान फतेहपुरी, शौकत सिद्दीकी को अक्सर तकरीबात में सदारत अफरोज़ देखता था तो कहता था कि ये लोग सदारत और दिबाचा निगारी के लिए क्यों बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं। अब जब खुद भी इस रविश पर चलना पड़ रहा है तो आश्कार हो रहा है, सदारत बहुमरस न बाअक़ल। मैं किताब पढ़ लूँ तभी रुनुमाई की महफिल में आता हूँ, वरना तबीयत नासाज होने का उज़र कर लेता हूँ। रगे जहाँ पढ़कर बहुत से तासुरात जहन में उभरते हैं, ये आप बीती भी है, नावल भी, बकौल नहीं बेग नावलनिगार, रोशन इम्कानात का सफ़र भी। कहीं हसरतें, कहीं तमन्नाएँ हसरतों में बदल रही हैं, कहीं हक़ाइक़ ख्वाब हो रहे हैं, कहीं सपने ताबीर पा रहे हैं, कहीं खोए हुओं की जस्तजू है, कहीं नई मंजिलों की तस्वीर की सुर्खरुई है, और कहीं अधूरे इश्क हैं, कहीं ताल्लुकात में वीज़े सरहदें हायल हैं। जैसे कि मैं पहले कहा कि नावल लिखना मुश्किल काम है, तारीख़ी नावल लिखना और भी मुश्किल। फिर माज़ी करीब की तारीख़ को अफसाना बनाना, अब्बासी दौर हो, उस्मानी दौर, तो तारीख़ को आसानी से वस्त किया जा सकता है। इस्लामी नावलों में ये कोशिश बहुत की गई है। नसीम हिजाज़ी की नावल आपके सामने है, लेकिन इस तारीख़ को जिसके ऐनी शाहिद अभी ज़िंदा हो, उसके हक़ाइक़ को अपना रंग देना बहुत दुश्वार है। गुलबानो जिन्हें मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि उन्होंने जब रगे जहाँ